जी तो अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ मुनिस सत्तर इंडिया वाली, और आप सबको 9 बजे के इस खास सेशन में दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। आपका वक्त निकाल कर यहाँ आना हमारे लिए बहुत कीमती है। उम्मीद है आज के सेशन में हम सब मिलकर मुफीद और मीनफुल बनाएंगे इसको। तो चलिए मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। तो मेडिटेशन के लिए हमारे पास वैसे तो मनोज भाई हैं, लेकिन हम इस वक्त एक वीडियो देखेंगे और वीडियो के बाद मनोज भाई उसके कहते हैं ना बताएंगे कि क्या फायदे और क्या नुकसानात थे। नुकसानात तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली फायदे ही फायदे होंगे। तो चलते हैं मिस लैला की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिस लैला, जरा वो प्ले कर दीजिए। ओके मैम। मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद बातें शेयर करूँगा कि मेडिटेशन के दौरान अ, जब तक मेडिटेशन चल रही है तो 10 मिनट की मेडिटेशन है, तो आप सभी ने आंखें बंद करनी है बिना कुछ सोचे समझे। कुछ समझ में इंग्लिश में है वैसे मेडिटेशन, समझ में आए या ना आए, आप लोगों ने आंखें बंद रखनी है जब तक आपको कहा ना जाए कि आंखें खोल दीजिए। ठीक है? और आवाज़ खत्म ना हो जाए। ठीक है? ओके जी, प्ले कीजिए सब लोग, और सब लोग सीधे होकर बैठ जाएं। शाबाश। और आंखें बंद कर दीजिए। To a guided Vipassana meditation on Declutter the Mind. So, in this practice, we will be developing mindfulness with the Buddhist practice called Vipassana, which in Pali means clear insight. And this is a simple introduction to this meditation practice. And so, you don't need to be Buddhist or religious to enjoy this mindfulness meditation. And so, to start, find a chair or cushion on the floor, sitting with your back upright and comfortable, resting your hands in your lap. And now, close your eyes. And now let's bring our attention to the breath. We will be using the breath here to anchor our attention and help still the mind from all the thoughts, perceptions, emotions, and feelings that surface. And so we're not changing anything about the breath here. We're simply watching the breath with a gentle, effortless attention. And then whenever something arises in the mind and attempts to pull our attention away, we gently bring our minds back to the breath. And if it helps, notice where you most easily detect the breath. So maybe it's the air passing in through the nose and nostrils. Maybe it's the air passing out through your lips and mouth. Maybe you notice the movement of your chest as it rises and falls with each breath that passes. And so, whatever allows you to effortlessly watch the breath, sit your attention there as you allow thoughts and perceptions and feelings to pass through the mind without taking your attention away from the breath.
And if you find that the mind has drifted off into thoughts and thinking, that's okay. We just gently bring the mind back to the breath without frustration, without ये नहीं adding मैं more thoughts. And if it helps here, we can use labeling and noting to recognize the distraction before bringing our attention back to the breath. And so if a sound in the room distracts you, label that as hearing before bringing your attention back to the breath. And if your mind wanders to planning the day ahead, bring your attention back to the breath and label that as thinking. And see if you can actually glean the insight of being inside of a thought versus outside of a thought. Noticing a thought versus getting lost in it is very different. And so we can't stop the mind from thinking, but we can be outside of our thoughts. It's a different feeling. It's more awake. It's more present. This is part of Vipassana. This is the insight we can experience and practice when we notice thoughts while anchoring our attention for the next few moments. And if there are any feelings, thoughts, or perceptions that are present and particularly strong today, such as boredom or thinking about the future or stress, we can allow these objects to temporarily become the subject of mindfulness. So, with a soft and open awareness, place your attention on this strong feeling or thought for a moment. And as you fully attend to this object, does it become more intense or does it dissipate? See what happens when you place an open awareness on it. See if it changes. Again, being outside of it versus inside of it. And then when the subject dissipates, or when the object loses its strength,
gently return to watching the breath with an open awareness. And now, open your eyes and notice how you feel. जी, थैंक यू सो मच मिस लैला, इट वाज रियली वेरी अमेजिंग। सो इस पे रोशनी डालिए मनोज भाई, इसके बेनिफिट्स बताइए। जी, ये मेडिटेशन थी इंग्लिश में, और इसको कहते हैं विपस्सना मेडिटेशन। विपस्सना में हम कहते हैं आनापाना मेडिटेशन भी कहते हैं इसको। आनापाना कहते हैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, यानी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। ठीक है, तो ये सांस की एक मश्क है जिसमें हम अपना जो पूरा जो फोकस है वो अपनी सांसों पे लेते हैं। अब सांस ही क्यों हम, ठीक है, इंसान जो है, इंसान हम दिन में बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं और इग्नोर करते रहते हैं, छोड़ते हैं। यानी मिसाल के तौर पे हम कहते हैं आज हम ये नहीं देखेंगे, कहते हैं ना, आज हम ये चीज़ हम नहीं देखेंगे, आज हम बुरा नहीं सोचेंगे, ठीक है, या किसी को बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन किसी से आपने सुना है कि आज हम सांस नहीं लेंगे, आज हम सांस लेना बंद कर देंगे? कभी किसी से सुना है? कभी नहीं। तो सांस एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त 24 घंटे चल रही होती है, आपकी पैदाइश से लेकर आपके एंड तक, हमारी एंड तक चलती रहती है। यहाँ तक कि हम सोते रहते हैं तभी भी चलती रहती है। चाहते और ना चाहते हुए भी हम सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। अभी भी आप मुझे देख रहे हो, लेकिन सांस चल रही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब भी अब हम जो है कभी भी तनाव में आते हैं या कुछ भी हम उदास होते हैं, मायूस होते हैं या गुस्से में आ जाते हैं, यानी जैसे ही हमारे बिगाड़ पैदा होता है हमारे जिस्म में, तो क्या होता है, हमारी सांस जो है वो बदल जाती है। कभी आपने देखा होगा गुस्से में जब आते हैं इंसान, तो गुस्से में क्या सांसें कैसी हो जाती है उनकी, तेजी से इंसान हाँफने लग जाता है, बहुत ज़्यादा तेजी से वो होती है सांसें। और उसी के बरक्स जो है, अगर उदास होता है तो सांसें बहुत ही धीमी हो जाती है, बहुत ही स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब हमारी जो सोच है, हमारे जो जज्बात है, उसका कनेक्शन हमारे किससे है, हमारी सांसों से है। तो जैसे ही अगर तनाव में आए तो उसको कहते हैं भाई ठहर जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे हमारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा ना कि जब गुस्सा आए तो क्या करें, आप लोग बैठ जाएं आराम से, ठीक है। अगर खड़े हुए तो बैठ जाएं, बैठे हुए तो लेट जाएं आप। इसका मतलब जैसे बैठते हैं तो क्या होता है, हम पुरसुकून में आते हैं, है नहीं। इसका मतलब ठहरने को कहते हैं, ठहरना कैसे। और जैसे हमने सांसों पे अपना ध्यान दिया, थोड़ा सा फोकस किया, तो क्या हो जाता है, हमारा जो सोचें वो कहाँ पर आ जाती है, वो हमारी सांसों पे आ जाती है। तो जैसे ही हमारी सोचें सांसों पे आ जाती है, तो हमारे जो जहनों में जो ख्यालात होते हैं ना, वो कहाँ पर आ जाते हैं, वो हमारे सांसों पे आ जाते हैं, और सारे ख्यालात क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो इस वजह से हम जो है मेडिटेशन करते हैं, ताकि हमारा जो जहन में तनाव है, टेंशन है, परेशानियाँ हैं, या उदासी है, मायूसी है, वो बैलेंस हो जाए। किसके ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए। और मेडिटेशन के जब सांसों पे हम अपनी तवज्जो देंगे, तो इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। जी मनोज भाई, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से मेडिटेशन को समझाने के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वाकई में बड़ा अच्छा समझाते भी हैं। और जब ये मेडिटेशन की हमारे पास वीडियो नहीं होती
तो आप बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाते भी हैं मनोज भाई, बहुत थैंक यू आपका। तो अब जबकि हमारा माइंड रिलैक्स है और हम फ्रेश हैं, तो चलिए सुकून के साथ आज का टॉपिक की तरफ बात करते हैं। आज हम बात करेंगे और मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि कुछ नए चेहरे आज हमें नजर आ रहे हैं, तो उनसे मुलाकात कर लेते हैं। तो मिस सौलत, आप जरा उनसे तारुफ हमारा करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मदर ऑफ मनाहिल। जी आप बताइए कि आप की बेटी जो है, आप क्या अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन कराइए। बताइए कि आपकी जो बेटी है उनकी फैसिलिटेटर कौन है और वो कौन सी ब्रांच में पढ़ती है या ऑनलाइन में है। मदर ऑफ मनाहिल, आपको आवाज आ रही है? मदर ऑफ मनाहिल, आपको आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, दूसरे हैं हमारे पास गुलनाज शेख। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी आप लोग प्लीज जी अपना अपना वालेकुम अस्सलाम। कैमरा जी ओपन कर वालेकुम लीजिए। अस्सलाम। मिस गुलनाज, अपना कैमरा ओपन कर लीजिए प्लीज। मैम मैंने आपको मजबूरी बताई थी, ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। अच्छा, सही है, हाँ, तो ठीक हो गया। ये वीकेंड का टास्क है, इंशाल्लाह वीकेंड पे ठीक हो जाएगा ये। चलें इंशाल्लाह, अच्छा इंशाल्लाह मंडे से आपको देख सकेंगे ना। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए और ये बताइए कि आपके जो बच्चे हैं वो कौन सी ब्रांच में हैं, ऑनलाइन में है या फिजिकल, उनके फैसिलिटेटर मेरा कौन है। नाम गुलनाज शेख है, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। और बेसिकली मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है, लेकिन पिछले कोई 19 साल से हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं। मेरी बेटी है 9 इयर्स की, महरंग इमरान उसका नाम है। और अभी वो इसी महीने उसने ज्वाइन किया है रेहान ट्यूशन एकेडमी में, ऑनलाइन में। तो वहाँ वो पढ़ रही है और हम भी साथ साथ उनके पढ़ रहे हैं। तो मैम आपको दूसरे हमारे हैं सिनान बिजनेस वाला की जो मदर है। मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवाना हूँ। मेरा बैकग्राउंड पंजाब से है। वैसे मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। मेरा बेटा सीनान अली, सीनान बिजनेस वाला यहाँ पर है, कोरंगी कैंपस में। मैम कितना और टाइम हो गया सिनान को? 1 साल कंप्लीट हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया है सीनान को। अच्छा, तो 1 साल में आपने सिनान के अंदर क्या चेंजिंग देखी या आपको कैसा लगा रेहान फाउंडेशन के बारे में आप कुछ बताएंगी? काफी काफी चीजों में चेंजिंग देखी है, काफी चीजें अच्छी, माशाल्लाह चला लेता है। थोड़ा मैं शायद इतना मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन काफी पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है माशाल्लाह। काफी ज्यादा काम वगैरह वो खुद कर लेते हैं, अब क्यों कंप्यूटर के ऑनलाइन कुछ भी पूछो माशाल्लाह काफी चीजें कर लेते हैं। जी। अच्छा, मदर ऑफ मनाहिल, आपको आवाज आ रही है? आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम आप सो बताइए अपना। जी जी, मेरा नाम मिस उम्मे मुआज़ है और हम लोग ज़िला भक्कर से हैं। हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। पहले अभी हम 1 मंथ पहले जो है हम इस्लामाबाद थे, तो इनके बाबा जो है आउट ऑफ कंट्री गए हैं, तो हम लोग ज़िला भक्कर में जो है वो शिफ्ट हुए हैं। तो अभी बच्चों को मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया है। मतलब अभी बच्चों की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई यहाँ पे न्यू, तो उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार क्योंकि रिहानी स्कूल के बारे में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने सुना हुआ था। इस्लामाबाद रहते हुए भी काफ़ी मेरा इंटरेस्ट था कि मेरे बच्चे जो हैं वो रिहानी स्कूल में पढ़ें, लेकिन वहाँ पे कुछ मतलब रीज़न थे जिसकी वजह से फिजिकल क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए ना। तो जब यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो मैंने सोचा कि अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं वहाँ पे ना। तो अभी तो बच्चे वैसे स्कूल नहीं जाने लगे, लेकिन आज सुबह भी मैं मैम से यही डिस्कस कर रही थी कि बच्चों को मैं दोनों तरफ लेके चलूँ या फिर सिर्फ रिहान स्कूल में ही मतलब बच्चे पढ़ें। तो एक्चुअली मेरे बच्चे जो हैं वो मनाहिल जो है वो 7 ग्रेड में है, और जो उससे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो जो एक 5 में है, एक 3 में है, एक 1 में है।
तो यही डिस्कस कर रहे थे इस बारे में ना, कि उनको भी अभी रेहान स्कूल में करवाया जाए या 5 के बाद करवाएं। तो आप इस बारे में मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं? मैम देखिए, शुरू के 6 मंथ्स जो है ना, हम बच्चे को आप ये कह लें कि हम हमारा एक कोर्स होता है ACCL जिसको हम कहते हैं। ACCL का जी। कोर्स 6 मंथ्स के अंदर हम कंप्लीट जब वो करा रहे होते हैं, तो 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में ये होता है कि हम पेरेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आप एकेडमिक सिस्टम भी कंटिन्यू रखें और ये भी, ताकि 6 मंथ्स जब आप हमारे साथ रहते हैं तो हमारे माहौल को समझते हैं, बच्चा भी हमारे माहौल को समझता है, देखता है, सीखता है, जो पेरेंट्स के कंसर्न्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं 6 मंथ के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि दोनों को लेकर अगर चलेंगी तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी इससे, कि आपको जो जो भी इश्यूज हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक एकेडमिक सिस्टम से आपके बच्चे बिल्कुल अलग सिस्टम में आता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, पेरेंट्स को सबसे पहले समझने में टाइम लगता है। तो हम ये है कि 6 मंथ तक तो आप जो है वो कम से कम बच्चे को एकेडमिक सिस्टम में भी रखें और हमारे साथ भी। और जो आपके बच्चे अगर जैसे छोटे हैं तो अभी उनको रहने दें, 5 ग्रेड तक उनको पढ़ने दें, ताकि बच्चा जब लैपटॉप खोले आगे आके हमारे पास तो उसको थोड़ी सी नोहा हो, उसको समझ आए, उसको पढ़ना आता हो, कि वो सिर्फ लैपटॉप को खोल कर ना बैठे, उसको समझे भी। तो कम से कम आपके बच्चे को 5 ग्रेड पास होना चाहिए। और मैम ये क्लासेस मतलब ये जो मीटिंग्स हैं, जैसे दोपहर को है और शाम को है, तो दोनों ही मीटिंग अटेंड करनी होती है पेरेंट्स ने? मैम, एक कर लें या 2, जो भी जैसे आपको आसानी हो, कोई इसमें वो नहीं है कि आपको दोनों करनी है। आप जिसमें रिलैक्स हो, आपको जो जो टाइम हो, अगर आफ्टरनून में आपको टाइम है यानी कि 2 से 3 वाली में, तो वो कर लीजिए। और अगर आपको 9 से 10 वाली में जिसमें आप रिलैक्स हो, आप वो कर लीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, और अब हमारे पास है मदर ऑफ मुइज। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए। जी, मैं मोई सरवर की मदर हूँ, मेरा नाम है मेरा। और मोई जो है वो फिजिकली पहले बताया हुआ है, लेकिन दोबारा हम कर देते हैं कि रेहान स्कूल इस्लामाबाद में ना फिजिकली 8 माह से उधर पढ़े थे। और अभी उससे छोटी बेटी को और छोटे बेटे को ना अभी हमने करवाया है ऑनलाइन एकेडमी में, विद इन 1 मंथ हो गया। तो अभी से हम 2-3 दिन से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, पेरेंट्स मीटिंग की। तो अच्छा लग रहा है बहुत। तो कुछ चीज़ें बहुत सी सीखने को मिल रही हैं हमको भी, पेरेंट्स के जो होते हैं कमेंट्स, उनकी बातें वगैरह, उससे काफ़ी जो है ना इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अच्छा लग रहा है ये। मैं और मेरे हस्बैंड भी जो है ना, मोइस के फादर, हम दोनों क्लास जो है ना दोनों ले रहे हैं, 2 बजे की वो 9 बजे की भी। बहुत तो अच्छी बात है मैम, जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना आपको भी समझ आएगा और हाँ, आपके बच्चे को भी समझ उतनी जल्दी आएगा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है हमको ना क्लास 10 करके ना। तो हमको भी अब होता है कि 2 का टाइम हो गया तो हमने क्लास 10 करनी है। अभी 9 हो गया, तो कोई काम अगर है पहले तो हम उसको फिनिश कर लें। तो बच्चों के साथ साथ ना वो होता है, तो काफी माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। जी मैं सौलत आपसे कहना चाहूंगी कि मदर ऑफ मनाहिल से भी आप ये बात कहिए कि जितना आप इन्वॉल्व रहेंगी उतना आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये कंपलसरी कर दिया है दौलत भाई ने क्लास को अटेंड करना। ये आपकी चॉइस पे नहीं है, इट्स कंपलसरी 2 बजे वाला या 9 बजे वाला, लेकिन जी जी, हाजिरी आपकी लाजमी होनी चाहिए। लाजमी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब हम कल से सॉरी मंडे से जो है हम यहाँ पे वो अटेंडेंस शीट भी भेजा, अटेंडेंस लिंक भी भेजा करेंगे। तो यहाँ पे भी अटेंडेंट हुआ करेगी, इन लोगों की अटेंडेंस लगाया करेंगे तमाम पेरेंट्स। तो मैं सहूलत इनको वाजे कर दीजिए मदर ऑफ मनाइल को। जी। जी मैम, आप जैसे अभी मिस मोनस ने आपको बताया, ठीक है, आपने लाजमी अटेंड करनी है क्लास। ठीक है, देखिए, आप जितनी ज्यादा इन्वॉल्व होंगी उतना ज्यादा आपका बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, आपको भी समझ आएगा और आपको ये पता होगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर जी बच्चे जब क्लास अटेंड करते हैं, मतलब मनाहिल अभी भी मैं उसके साथ ही बैठी हुई थी। एक्चुअली मुझे खुद भी एआई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं सर इरफान मलिक वगैरह के लेक्चर्स भी लेती रहती हूँ, बल्कि मुझे इंटरेस्ट तो जो आप लोगों की टीचर ट्रेनिंग है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है ना। बल्कि मैं उसके बारे में आपसे पूछना था कि जैसे पेरेंट्स अगर उस साइट पे जाना चाहें तो उनका फिर क्या क्राइटेरिया वगैरह है? मैम, टीचर्स ट्रेनिंग हमारा ऑनलाइन भी होता है।
आप ऑनलाइन में एनरोल हो सकती हैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन भी है। ठीक है। आप इसके बारे में सर दौलत से भी मालूमात ले सकती हैं। सर दौलत आपको बता देंगे। ठीक है। लेकिन ये कि हमारा मकसद यहाँ पे बैठने का ये कि सारे पेरेंट्स होते हैं, सबके अलग अलग कंसर्न्स होते हैं। यानी कि किसी को कोई मसला होता है, जब हम सब अपने मसलों को यहाँ बताते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो अगर हमारे साथ होता है जो हम नहीं कर पाते, तो फिर दूसरा उसकी हल निकाल देता है। तो हमारा सबका साथ बैठने का मकसद ये होता है पेरेंट्स का, कि हमें हमारे जो भी कंसर्न्स हैं हम उनको क्लियर कर लें। ठीक है। तो आप जी लोग की या 2 बजे की क्लास अगर आप ले रही हैं, या 9 बजे की, जो भी है, लेकिन एक लाजमी एक लेनी है आपने, वो कंपलसरी है आपको। तब जैसे मिस मोनस ने कहा कि ओके अटेंडेंस होगी डेली, तो वो फिर अब पता चल जाएगा कि कौन एब्सेंट है और जी कौन। बिल्कुल। जी जी मिस थैंक यू मोनस। सो मच मिस सोलत, थैंक यू सो मच। हम सवाल लेते हैं मिस गुलनाज का। जी मिस गुलनाज। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो अभी मीटिंग हो रही है, ये 5 दिन होगी? ये 5 days a week होगी? मिस ये अफवाह किसने फैलाई, पहले तो आप ये बताएं मुझे। नहीं, मेरा सवाल है ये, मैं बता नहीं रही, अच्छा। आपसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं मेरे नहीं नहीं। दो तीन सवाल है मेरे। तो जी जी। पहले आप अगर इसका जवाब दे दें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अच्छा। मिस ये जब तक दौलत भाई मना नहीं करेंगे तब तक चलती रहेगी। पहला जवाब ये हो गया। नहीं नहीं क्लास नहीं, का। जी मेरा मकसद ये था कि सिर्फ 5 दिन नहीं, 5 days a week की मैं बात कर रही हूँ। 5 days a week होगी, क्योंकि जी जी। ऑनलाइन मंडे टू क्लास है ना। फ्राइडे जी। मंडे टू हाँ, मंडे फ्राइडे टू, जी। यस, यही मेरा सवाल था। जी दूसरी ये बात थी कि अब कुछ लोग जो है ना, आपने इस मीटिंग का मकसद बताया है कि पेरेंट्स के कंसर्न को यहाँ जो है वो कैटर किया जाए, ठीक है ना। तो अब मेरे जैसे जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ वाली क्लास में भी होना जरूरी होता है। सही सही है ना। तो 1 घंटा वो हो गया और 1 घंटा लेंगे, फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए कोई हल है? मिस आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कर देंगी? मेरा थोड़ी देर के लिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। कंसर्न वाली बात आपने शुरू करी थी अच्छा और मेरा इंटरनेट चला गया था। जी अच्छा अच्छा। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने बच्चे के साथ उसकी क्लास में भी मौजूद हो। सही? आप सुन रहे हो? जी जी जी। हेलो। जी जी जी। अच्छा, अब मुझे आपकी आवाज आना बंद हो गई। हाँ। तो वो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज उसके साथ क्लास में मौजूद हूँ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये एक मीटिंग हो रही है पेरेंट्स के लिए, विच इज लाइक पीटीए, जिस तरह होती है आम स्कूलों में कि पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही हो। क्या आप लोगों को मिस गुलनाज की आवाज आ रही है? नहीं, उनकी आवाज़ बंद हो गई। एक्चुअली मुझे मुझे मैं जहाँ तक समझा हूँ ना, मोने साहब वो आई थिंक कहना चाह रही हैं कि 2 बजे जो हमारी जो अर्निंग की जो क्लास होती है, वो पूछ रही हैं कि आया उसमें भी आना कंपल्सरी है या नहीं है? और दूसरा जो मीटिंग है, मैं 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 जहाँ तक समझा वो ये पूछना चाह रही हैं। तो हमारा तो ये है कि वहाँ उस जो जिस टाइम अर्निंग की क्लास होती है, उस टाइम तो कंपल्सरी नहीं है पेरेंट्स का आना, ऐसा ही है। सिर्फ या तो 2 से लेकर 3 बजे की क्लास में आ सकती हैं पेरेंट्स मीटिंग, दो होती है पेरेंट्स मीटिंग, एक 2 से लेकर 3 और 9 से 10 बजे तक। तो दोनों में से किसी भी टाइम आ सकती हैं। तो आई थिंक उनको कोई कन्फ्यूजन हो चुकी है, तो उनका कन्फ्यूजन दूर कीजिए इस तरीके से। जी मैं बिल्कुल। गुलनाज मैम अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो मैं आपकी कंफ्यूजन को इस तरह दूर करती हूँ कि मिस पहले जो है उस क्लास में, जो अर्निंग की क्लास है, उसमें कहा जाता था कि नहीं, अगर आपने ये क्लास ज्वाइन कर ली तो अब आपको पेरेंट्स का सेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया था। और ये मुझ तक भी आई थी बात। लेकिन दौलत भाई ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल अलग क्लास है और ये बिल्कुल अलग क्लास है। और कंसर्न की जहां तक बात है, जो मिस सौलत ने कहा, तो मिस कंसर्न का मतलब वो नहीं है कि हम आपसे मसले पूछे। कंसर्न का मतलब ये है कि आपकी राय के मुताबिक जो अब तक आपने सीखा, देखा और समझा बच्चे के साथ, उसके बारे में हमें फीडबैक दीजिए। इस क्लास में बैठने का मकसद ये है।
जी, मेरी अच्छा आवाज मैम, आई है? आज मेरी आज आवाज मैं, जी 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 आपकी आवाज भी उसी जी तरह मिस कट जी। कट के मेरे पास आई है, लेकिन कुछ समझ मुझे आई है। अब अब पता है क्या, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि मुझे लग रहा था कि ये एक मीटिंग है, ये क्लास नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे रेहान स्कूल ने पेरेंट्स के लिए ये एक सहूलत किया है कि अगर उनको कोई भी कंसर्न है अपने बच्चों के हवाले से तो वो इस मीटिंग को अटेंड करें और वो अपने कंसर्न्स को सॉल्व कर लें, ठीक है ना। यही मकसद है ना हमारा। नहीं, मैंने अभी यही क्लियर किया था कि नहीं, ये मकसद नहीं है। अच्छा बताइए दोबारा फिर प्लीज जी, बता दीजिए। मैं अल्लाह करे मेरी आवाज अब ना अटके। मैंने ये बताया था कि ये मीटिंग इसलिए रखी गई है, मिस सौलत ने जो कंसर्न वाली बात कही थी अभी, कंसर्न इन अ हाँ। सेंस ये है यहाँ पे इस वक्त इस क्लास में कि जो अब तक आपने अपने बच्चों के साथ बैठकर सीखा, समझा और ऑब्जर्व किया, और आपको लगता है कि हम कहाँ पे इस चीज को मजीद बेहतर कर सकते हैं, या आप कहाँ पे इस चीज को समझ नहीं पा रही, जो रेहान स्कूल का करिकुलम है पूरा, तो उस हवाले से हम यहाँ पे आपको गाइडलाइन देने के लिए बैठे हैं। अच्छा जी, अच्छा बिल्कुल ठीक हो गया। जी लेकिन अब ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि जैसे बच्चों की अटेंडेंस है और फिर बच्चों के साथ पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अब ये मीटिंग हो रही है, इसमें जो भी चीज अभी आपने एक्सप्लेन की है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इसका अटेंडेंस लगाना शुरू कर देंगे, मैंडेटरी इसको कर देंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब पीपुल लाइक मी हु आर वर्किंग में अभी पूरे दिन की मीटिंग्स के बाद ना, अभी आपकी क्लास से 15 मिनट पहले घर में घुसी थी, और मैंने रोजे के बाद अभी डिनर भी नहीं किया। मैं आके पहले बच्चे के साथ बैठी और फिर इसमें बैठी, और फिर मुझे अपनी असाइनमेंट्स भी करनी होती है, तो मेरे लिए 2 घंटे डेली के लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये वाली मीटिंग मतलब ऑन एंड ऑफ तो कर सकती हूँ, हफ्ते में एक आध दो कर ली, लेकिन मेरी कोशिश हो कि बच्चे के साथ वाली मैं जरूर लूं और उसको जरूर मैं करूं, क्योंकि मेन मकसद तो उसको पढ़ाना है ना। ये मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जी मिस, मैंने जहां तक आपकी बात को समझा है उसमें ये है कि आप अपनी पूरी बात जो है ना मिस, लिख के ग्रुप में या मुझे प्राइवेटली दौलत भाई को मेंशन करके भेज दीजिए, और अपने बच्चे का नाम भी भेज दीजिए, बच्चे का रोल नंबर, क्लास या कैंपस जहां भी वो होता है। ये बात आपके आगे तक पहुंचाई जाएगी, फिर जैसा दौलत भाई आपके लिए हमें सजेस्ट करेंगे हम वो फॉलो करते हुए आपको बता देंगे। मिस लैला, मैं ठीक है, अटक रही हूँ क्या ये आज? नहीं नहीं ये मैम, बिल्कुल उन्होंने सही चैट में बात लिख है। दिया, उन्होंने चैट में लिख दिया है, मिस गुलनाज ने चैट में रिप्लाई कर दिया। मदर ऑफ अब्दुल्ला मैम, काफी देर से हैंड रेस हुआ हुआ है उनका। जी जी मिस, आप ले लेती क्वेश्चन, मैं चैट पढ़ रही थी जी। मदर अब्दुल्ला जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी मदर मदर, ऑफ अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है? अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए मिस। अच्छा, मदर ऑफ मोइज, मदर ऑफ अब्दुल्ला, आप सबको पता है ना कि ये सेशन लाइव हो रहा है, मालूम है ना? तो मिस, आप लोग हिजाब, नकाब या मास्क वगैरह तो नहीं लगाती, क्योंकि बाद में आप लोगों की तरफ से ही ऑब्जेक्शन आता है ना कि हमें बताया नहीं गया था कि ये सेशन लाइव है, और हम फेसबुक पर बगैर मास्क के या बगैर नकाब के हम दिखाई दे रहे थे। तो इस वजह से आपको आगाह करना है मेरा काम। तो मैं आप सबको आगाह कर रही हूँ कि अगर आप लोग मास्क या हिजाब वगैरह करते हैं तो आप मंडे से उस तरह आया करिए। थैंक यू। जी जी मदर ऑफ अब्दुल्ला जी। जी मिस, आपकी आवाज बंद है। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, मुझे आपसे बात करनी थी कि सुबह ये 8 बजे जाते हैं तकरीबन यहाँ से, और शाम में 5 बजे तक आते हैं। अभी रमज़ान में 4 बजे आ रहे हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि साथ में इनकी इंग्लिश की भी कोई क्लास हो, यानी सर या आप टीचर्स वगैरह लें तो इनकी इंग्लिश भी यानी क्वालिफिकेशन थोड़ा अच्छी हो जाए, और
इम्प्रूव कर लेंगे। बोलचाल घर में बोलें, ये बिल्कुल नहीं बोलते इंग्लिश में, यकीन करें बात नहीं करते। तो इस तरह ये इंटरव्यूज वगैरह किस तरह लेंगे अगर अब्रॉड अगर इनको लेने पड़े तो? मिस इनको कितना वक्त हो गया रेहान स्कूल में? 6 मंथ हो गए मिस। मिस 6 मंथ में आप क्या चाहती हैं बच्चा क्या कर ले? K2 का पहाड़ थोड़ी चढ़ जाएगा, उसको वक्त तो दें। नहीं अभी नहीं, रुक वक्त जाए, तो हो दिया जाएगा। हुआ है। हमारा काम है ना कि उसको इंग्लिश की तरफ कैसे लाना। आप वक्त तो दें, मिस इतना जल्दबाजी नहीं करें। वो बच्चा नहीं इंग्लिश के चक्कर में बाकी चीजें भूल जाएगा। नहीं नहीं, कोडिंग के टास्क करते हो हैं ये जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अभी चैट जीपीटी से चल रही है इनकी आजकल कॉलोनी, इससे कर रहे हैं ये। काफी बेहतर हैं उस हिसाब से यानी कि, लेकिन थोड़ा और जैसे घर में भी थोड़ा करें ना आपस में, तो फिर ये कि ज्यादा जल्दी कैच कर पाएंगे। ये मुझे आपसे पूछना था। मिस ये तो आप बेहतर समझ सकती हैं कि घर में आप किस तरह उनको इंग्लिश बोलना और इंग्लिश में कन्वर्सेशन करवा सकती हैं। बाकी वो कॉल एनी सेसमी कर रहे हैं, वही तो एक जरिया है अंग्रेजी सही करने का। तो मुझे लगता है अच्छा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। 6 महीना तो मिस कुछ भी नहीं है, एक आटे में नमक के बराबर है बिल्कुल। आप करने दें, सुकून नाल सांस लें, आप हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी आज हमारे साथ 2 नए चेहरे हैं। तो हाजरा कियानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। भाई आपका माइक म्यूट है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। मैं मोहम्मद रेहान कियानी का वालिद हूँ, मोहम्मद सुफियान कियानी। कैसी हैं मैडम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आपने बच्चों का तारुफ तो बता दिया, अब ये भी बता दीजिए अपना तारुफ, और बच्चे कौन से कैंपस में या ऑनलाइन में कहाँ पे हैं बच्चे? ये रेहान कियानी जो है इस्लामाबाद कैंपस में है, और मैं मोहम्मद सुफियान कियानी आइस्को में जॉब करता हूँ, इस्लामाबाद में ही। रिहाइश हमारी इधर ही करीब ही है स्कूल के। रेहान स्कूल है यहाँ पर जो सरी चौक में, बारागो सरी चौक में। जी हमारी रिहाइश भी यहाँ पर ही है, बारागो में ना। जी जी सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई, अभी जिस बच्ची ने आपका माइक खुलवाया था उसको जरा बुला देंगे आप? कैमरे पे नहीं जी। बुलाइएगा, साइड में ही बुला दीजिए जी, साइड में ही बुला दीजिए। नहीं नहीं, अब आ जाएंगी वो, मैं नहीं अभी नहीं, बिजी मुझे थी जरा। कैमरे में नहीं नहीं, बच्ची की बस जरा सी हेल्प चाहिए मुझे, कैमरे में नहीं चाहिए बच्ची। जरा सा बुला दीजिए। अच्छा अच्छा, ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा स्क्रीन को जरा नीचे की तरफ खींचिएगा, जहां से आप इंटरनेट कनेक्ट करती हैं। वहां पे देखिए रोटेट का ऑप्शन होगा, उसको प्रेस करके बाबा का मोबाइल जो है ना वो इस तरह रख दीजिए। अच्छा अच्छा, सही है। जी ये जी, जी मैडम। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। जी भाई, आपसे दोबारा मैं हफ्ते में आती हूँ। हमारे पास एक और भाई हैं, उनसे पहले बात कर लूँ फिर आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फादर इब्राहिम इब्राहिम AI वाला। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, खैर से हैं सारे? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। तो ये बताइए भाई, इतना लेट ज्वाइन करने के पीछे क्या वजह है, और अपने बच्चे का और अपना तारुफ भी कराइए। लेट की मैं माजरत चाहता हूँ। असल में मुझे एक अफ्तारी पे जाना पड़ गया था दूसरे शहर में, तो उधर से अभी अब वापस भाई पहुंचा हूँ। भाई भाई, ये वाला लेट नहीं, ये वाला लेट नहीं, आज छठी क्लास है, आप 6 दिन से कहाँ थे? 6 दिन से हमने कल नंबर मिला हमें कल नंबर मिला है। कल ही आपने हुक्म किया था कि आज से क्लास स्टार्ट है, तो कल हम आए थे। तो कल हम आपसे लाइव थे पूरा घंटा ही। जी जी सर, वो ओवरऑल स्टार्ट से मैम का शायद कहने का मकसद है। बिल्कुल आप हमें याद हैं, हमने ये भी पूछा था मैम ने भी और मैंने भी कि प्लीज़ अपने बच्चे का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दीजिए कैंपस फैसिलिटेटर। बस ये वाली बात दरमियान में रह गई थी हमारी, बाकी आप इंटरेस्टेड भी थे। आपने अपना बताया था कि गांव से हैं। पंजाबी की भी जी बात हुई थी कि बहुत प्यारी और अच्छी बोलते हैं, सीख लेंगे। जी बिल्कुल याद है मैम को भी और हमें भी। मैम थैंक यू ये सर। कल वाली क्लास में थे, कल से ज्वाइन किया इन्होंने, कल भी थे। ACCL फाउंडेशन बैच। ACCL फाउंडेशन बैच 2 है इब्राहिम का ना। जी ठीक हो गया भाई, थैंक यू
सो मच। और मैं अफ्तारी का बिल्कुल नहीं पूछ रही थी आपसे, वो आप कहीं भी जाएं। अच्छा और अच्छा। चले अब हम सवाल, हैंड रेस किया हुआ है जाहिद मोहम्मद हसन के फादर ने, जाहिद भाई ने। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे बेटे ने मुख्तलिफ वेबसाइट पे अपने इंटरव्यूज़ करने होते हैं, तो जैसे लेट से आज यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब पे लाइव करना था उसने, तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसने वेबसाइट का कोई लिंक भी दिया है, तो उधर से उसे स्ट्राइक आ गई है। तो उसका अकाउंट उन्होंने जो है टेम्परेरी बेसिस पे उन्होंने कहा कि इतने दिनों के लिए हम मॉनिटर करेंगे, ये उसे आगे मजीद वर्क नहीं करने दिया। तो इसमें मेरी एक सुजेशन थी, जैसे मेरे और भी सुनने में आया है कि कुरंगी जो आपका कैंपस है वहाँ पे भी बाज़ बच्चों के जो है वो लिंक्डइन पे उनके अकाउंट जो है वो बंद हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं, क्या कहेंगे आपने? तो इस ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया तो बच्चों ने इस्तेमाल करना है, तो उसके जैसे मुख्तलिफ जगहों से कुछ गलतियां हो रही हैं, तो ये प्री जो है रेक्विजिट के तौर पे बच्चों को पहले समझा दिया जाए कि ये स्टेप्स, या जैसे लिंक्डइन पे ये मुझे इल्म है कि वो बहुत प्रोफेशनल पेज है, आप किसी भी प्रोफाइल को अगर बार बार देखते हैं तो वो उस वजह से भी वो करता है, ऐसा मेरा सुनने में है। तो ये काइंडली मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे इन्होंने तो अपने टास्क अपलोड करने हैं, लाइव करना है, तो उस लिहाज से उस मीडिया को यूज़ करने के लिए ताकि नहीं स्ट्राइक ना आए या इनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड ना हो, तो अंडर ऑब्जर्वेशन ना चला जाए, तो इसके लिए कोई पहले से बच्चों को गाइडलाइन दी जा सकती है कहीं, मतलब जिस तरह कोर्स आपका बना हुआ है, बुक्स बनी हुई हैं, उसी में ये चीज़ें ऐड हो? तो ये काइंडली एक सुजेशन थी, अगर है तो मेरे इल्म में नहीं है, प्लीज़ वो शेयर कर दें। जी भाई, इस बारे में मिस लैला आपको गाइड करेंगी। जी मिस लैला। सर एक्चुअल में हम अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर वे में गाइड करते हैं, और ऑब्वियसली वो बच्चे हैं, पेरेंट्स भी बाद में इन टच होते हैं, तो हमारा फुली फोकस होता है कि हमारे स्टूडेंट ये वाली मिस्टेक्स ना करें। हम रिमाइंडर भी देते हैं, बट ऑब्वियसली हैं कुछ तो ऐसे जीनियस बच्चे होते हैं, जब तक वो ये वाली चीज़ों से छेड़छाड़ ना करें, खुद से नई चीज़ें एक्सप्लोर ना करें, उनको मज़ा नहीं आता काम करने का। तो फिर नए नए तजर्बे करते हुए ये चीज़ें सामने आती हैं। तो जैसा देखें आपके सामने एक एक्सपीरियंस आया हमारे एक जीनियस स्टूडेंट का, तो उससे बहुत सारे और स्टूडेंट, लाइफ, पेरेंट्स, हम सबको एक लेसन मिला। तो ये सर जितना भी समझाएं, तो ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि बच्चे हैं फिर भी मिस्टेक कर जाते हैं, मिस्टेक एक्सप्लोर ही कर रहे हो, और कुछ करने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें फिर उनके आगे आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह हो जाएगा कवर, नहीं तो फिर दोबारा से देखेंगे इस चीज को। मेरे बच्चे का जो था ना वो एआई उसने करना था, या वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, तो वो उसका यूट्यूब की स्ट्राइक की वजह से उसका मामला भी रुक गया। हमने मिस जो है मारिया उनके इलम में ये बात ले आए हुए हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया था। तो आज उनकी जो मीटिंग होती है अफ्तारी के फौरी बाद बच्चों के साथ, अपने कैंपस के बच्चों के साथ, तो उसमें बच्चे ने ये अपना क्वेश्चन रेज किया उनके साथ, तो उन्होंने गाइड भी किया। तो मेरा सिर्फ ये है कि ये चीज़ें बच्चे के ना बिल्कुल सामने रहनी चाहिए, तो मुझे भी अगर रिटर्न में मिल जाए तो हमें भी एक आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें जो है ना, हम स्टेप्स को बिल्कुल सामने लिख लिया जाए या ना बच्चे को बार बार रिमाइंड करवा दिया जाए, क्योंकि इससे काम रुक गया उसका ना। ओके सर, तो अगर ये आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि हमें रिटर्न में वो पेज की शक्ल में डिजिटल नोट प्लीज़ हमें प्लीज़ अगर चाहिए, हो तो सके। वो जी जी सर ठीक है, इंशाल्लाह वो कल आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे ऑलरेडी चलें ठीक है, एज अ पेरेंट आप रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर वैसे बच्चों को ये इस चीज के लिए गाइड किया जाता है, और लिंक्डइन पर जब जी नया अकाउंट होता है लिंक्डइन का या यूट्यूब का, तो वो 2 से या 3 से ज्यादा पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन बच्चों को आपको पता है कि एक वो होता है कि हमें जल्दी टास्क करने, तो वो अपलोड बार बार करते रहते हैं, उससे बच्चों का अकाउंट जो होता है वो हैक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है कुछ तो टाइम के लिए। मेरे मैं इस बात एक ऐड करना चाहूँगा प्लीज़। मेरे बेटे का अकाउंट यूट्यूब का काफ़ी पुराना है, वो उसके ऊपर जो है अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह, अपनी वीडियोस खुद से बना के डालता रहा, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह और उसके जो भी उसकी सेटिंग होती है वो उसने खुद से की हुई है।
तो अब वो जो है मुझे ये शायद समझ आ रही है कि उसकी जो यूट्यूब की असल डिस्क्रिप्शन है उसमें जो उसने बताया कि ये इस पर्पस के लिए है हम्म और अब उसने वेबसाइट का दिया है, तो शायद ये ये कन्फ्लिक्ट ना वजह है, कर जी दे जी आप। जी, बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है। तो क्योंकि YouTube जब हम चैनल बनाते हैं तो एक उस जी जी मांगता है, वो हमसे डिस्क्रिप्शन मांगता है। तो जी जी डिस्क्रिप्शन जब ऐसे ही है। चेंज हो जाती है तो YouTube बंद हो जाता है। इसी तरह लिंक्डइन पर भी यही इश्यू होता है कि जब जी आपका लिंक्डइन का अकाउंट नया होता है तो अगर आप उससे जी 4 से ज्यादा पोस्ट डालते हो तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो जी आप उससे ये मतलब ये देखना चाह रहा है कि आप कोई और हो, कौन हो, तो वो टाइम लेता है। लिंक्डइन भी इस तरह की चीजें होती है, बच्चों को इस चीज के लिए बार बार गाइड किया जाता है। जब बच्चा आता जी है तो जी उसको स्टार्टिंग से ये चीजें बताई जाती है, लेकिन फिर आपको पता है बच्चे तो बच्चे हैं। ये कि हम वो कहते हैं कि हमें टास्क जल्दी कंप्लीट करने हैं, तो वो अपलोड करना चीजें शुरू कर देते हैं, तो इस वजह अ, से उनके अकाउंट। इसमें मिस मेरी सुजेशन मेरे बच्चे के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ कि उसका अलहदा से यूट्यूब बना दिया जाए, एक चैनल अलहदा से जिसके ऊपर रेहान स्कूल के जो रेलेवेंट है वो चीज़ें आ जाए। क्योंकि उसमें जो स्ट्राइक आई है उसने कहा जी जो वेबसाइट में HTTP जो HTTP जो होता है ये आया इस वजह से हो रहा है। तो थोड़ा टेक्निकल था, तो मैंने तो जस्ट वो सती लेवल पे उसे अंडरस्टैंड किया। तो अगर तो बेहतर ये रहता है, अगर ऐसा है तो उसका अलहदा से यूट्यूब चैनल बनवा दिया जाए जिसमें रेहान स्कूल के रेलिवेंट ही वो डिस्क्रिप्शन हो उसकी ना। जाहिद भाई, मैं इस सिलसिले में आपसे कहना चाहूंगी, जितना मैंने देखा है फिजिकल कैंपसेस में, मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में होती हूँ। तो जाहिद भाई, मेरा नहीं मशवरा आपको ये कि आप जल्दी से अभी दूसरा कुछ बनवाएं। आप थोड़ा सा इंतजार करें भाई, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाने से जी उसी प्लीज नाम प्लीज से, ठीक है। जी उसी नाम से, उसी इंफॉर्मेशन से ना, वो बार बार बंदिश आती जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो लाइफ टाइम के लिए बंद कर देंगे, फिर उसको ना ब्लॉक कर देंगे। जी मैम। तो आप थोड़ा जी मैम सा तो जी रुक जाइए भाई, बाकी प्लेटफॉर्म्स ठीक तो है। चल रहे हैं ना। जी, बाकी तो जी जी प्लेटफॉर्म्स चल रहे प्लेटफॉर्म हैं ना चल उसके, रहे सोशल मीडिया के। जी, तो आप उस वहां पे पे अभी उस पे उसको वो काम करते करने हैं। दें। जी जी, तो ठीक है भाई मैम, बहुत जी शुक्रिया। जल्दबाजी नहीं करें। जी बिल्कुल, मिस सौलत जल्दबाजी ने नहीं कर सही रहे। कहा कि हम दोबारा भी आपको दे देंगे ना, लेकिन भाई बच्चे फिर भी बच्चे हैं, वो उस बच्चे अकाउंट फिर को भी भी रिस्ट्रिक्ट करा देंगे। जी, सही सही सही। थैंक यू सो मच। जी नईम थैंक भाई, यू। अस्सलाम वालेकुम। ओ सॉरी भाई, जी जाहिद भाई, सॉरी, एक मिनट। जी प्लीज जी गो ऑन। वालेकुम अस्सलाम। जी नईम भाई, आपके बच्चे रोजाना मेरे पास आते हैं, मिस बाबा आते हैं, मिस बाबा आते हैं। अब बताइए बच्चे कितने एक्साइटेड हैं कि घर वाले हमारे आ रहे होते हैं क्लास में। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि बच्चे कितना जौक और शौक से पसंद करते हैं कि उनके वालिदैन यहाँ पर आए। ऐसा ही है बस नईम भाई? मैडम बिल्कुल ऐसा ही है मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक एक्सपीरियंस और अच्छा हुआ मैडम मुझे, जी यहाँ बैठ के पैशन बताइए। बड़ा आ गया मेरे अंदर, सब्र बहुत आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है भाई, मिलके बैठते हैं ना इंसान चार लोगों में, तो वो जैसा आपने बताया था एग्जाइटी आपको हो रही थी और आप डिप्रेशन में जा रहे थे, या जो भी कुछ आपके साथ परेशानियां थी, तो भाई जब मिलके इंसान बैठता है, बातचीत करता है ना, तो 10 किस्म के जो हैं उसके ख्यालात चेंज होते हैं, उसका माहौल चेंज होता है। तो इन चीजों से काफी लाइफ स्टाइल में जो है फर्क आता है। तो हमारे साथ इसी तरह जुड़िएगा रोजाना, तो अल्लाह ताला आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह पर करम इंशाल्लाह। करे, रहम करे। आमीन जी आमीन। हाजरा कियानी जी, अब आप खुद हैं मिस? जी मिस हाजरा, वो माइक खोल लीजिए अपना। मिस माइक भी खोल लीजिए, और आपने रोटेशन भी चेंज कर ली मोबाइल की, वो भी वैसे ही कर लीजिए। अच्छा, आ गई। जी मिस। जी मिस आप सीधा रखिए ना मोबाइल। जी जी। हाँ जी मिस, तो भाई ने बताया आप लोग बारा का हूँ और सिरी चौक के पास ही रहते हैं। तो हम 2025 के हम जनवरी में, बाहर को। मिस जी जी। सही है आप। मैं कह रही हूँ हम 2025 में जनवरी में आए थे, हम बाराकाहू में रहे थे 10-15 दिन, रेहान स्कूल अच्छा। इस्लामाबाद कैंपस में। तो ये बताइए कि इस कैंपस से उल्टे हाथ की तरफ हैं आप लोग या सीधे हाथ की तरफ, चढ़ाई की तरफ? नहीं नहीं मैम, हम लोग बहारा को, ये अठाल चौक है ना, हाय अठाल अल्लाह, चौक मुझे से क्या पता। जी जी शेरी चौक में नहीं है हम लोग ये बहारा को, यानी कि ताज टाउन हमारे इस जगह का नाम है ना, ताज टाउन इसे कहते हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं।
ओके, तो मिस ये बताइएगा कि आपके यहाँ किसको ख्याल आया अपने बच्चों को रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में एडमिशन कराने का, और कैसा रहा अब तक का तजुर्बा आप लोगों का? जी मैम, ये हमारा रेहान के बाबा जो हैं, इनके एक दोस्त हैं, वो इस चीज के बारे में ज्यादा मालूमात रखते हैं ना। तो रेहान ने जब सही। 5th की तो हमारा यानी कि माइंड बन रहा था कि हम इसे किसी हॉस्टल वगैरह में डालें, कैडेट वगैरह की तरफ माइंड था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आने वाले दौर में ये चीज ज्यादा चल रही है, वो माशाल्लाह सही पढ़े लिखे हैं। तो वो फिर इसके बाबा को कहीं ले गए, उनको स्कूल का पता था। वहां पे इन्होंने पहले मुझे बताया नहीं है, विजिट वगैरह करके आए, फिर मुझे आके बताया इन्हें कि ऐसा मैं क्या हूँ, रेहान की मैंने बात की है। फिर रमजान था, ये पिछले साल रमजान की बात है। और रमजान में तो बिल्कुल इसके बाबा के पास टाइम नहीं होता, फिर ईद के बाद हम लोगों ने इसका एडमिशन करवाया है। चलिए मिस, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। और आप सबको बताती चलूं कि क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे नहीं होती है क्लास। तो हम इंशाल्लाह मंडे को आप सबसे दोबारा मुलाकात करेंगे। और सनीन की वालदा, आपके बच्चे ने अभी तक मेरा नंबर भी सेव नहीं करा, और मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं करा, ताकि मैं उसको बैकग्राउंड का भेज सकूं। आप मंडे से बैकग्राउंड लगा कर आइएगा। अब हम बात करते हैं आखिर में तबरेज भाई से। सॉरी तबरेज भाई, बहुत इंतजार करवाया आज आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सब किसी को एंटर मत कीजिएगा क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। जी वालेकुम तबरेज भाई। सलाम मैडम, कैसी हैं आप? वो सारे अच्छे होंगे। जी तबरेज भाई, आपकी आवाज आई नहीं मुझे। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी उम्मीद जी है सब वालेकुम खैरियत से अस्सलाम। होंगे। लगा सकता हूँ आराम से कुछ चीजें। नहीं भाई, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मुझे क्लास का ये फ़ायदा हुआ है, अभी मैंने मोइस से ना सारी उसकी आज सुबह से लेके शाम तक उसने क्या किया है वो डिटेल्स अभी मुझे भिजवा रहा था। तो आई थिंक इससे काफ़ी चीज़ें बेहतर होगी। फर्दर जो पेरेंट्स हैं सारे, वो अपने बच्चों से